Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Sri Shivaji Law College, Parvani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss the definition of compoundable and non-compoundable offense. It is not a definition, but we will discuss the concept of compoundable and non-compoundable offense. Which offense comes under the category of compoundable one? Which offenses comes under the category of non-compoundable one, and what will be the essence of these two types of offenses. तो आज के लेक्चर में हम कंपाउंडेबल ऑफेंस किसको कहेंगे, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस किसको कहेंगे, ये डिस्कस करने वाले हैं. तो बने रहिए लेक्चर में. और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिएगा ताकि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे. तो चलिए डिस्कस करते हैं कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस को. Compoundable offense, first of all, we will discuss. So the first points relating to the compoundable offense is compoundable offense are those offenses where the complainant enter into a compromise and agrees to drop charges against the accused person. So if the offense is a compoundable offense is nothing but an offense in which the complainant can enter into a compromise with the accused person. तो कंपाउंडेबल ऑफेंस किसको बोलेंगे? ऐसे ऑफेंसेस जिसमें कंप्लेनेंट कि जिसके अगेंस्ट में ऑफेंस हुआ था उसके और अक्यूज के बीच में कंप्रोमाइज हो जाए. द ऑफेंस विच कैन बी कंप्रोमाइज्ड कैन बी कॉल्ड एज अ कंपाउंडेबल ऑफेंस. ऐसे ऑफेंस जिसमें कंप्रोमाइज पॉसिबल है उसको हम कंपाउंडेबल ऑफेंस कहेंगे. तो अगर मेरे अगेंस्ट में सपोज किसी ने मुझे थप्पड़ मारा, ये ऑफेंस है, हर्ट किया उसने मुझे, लेकिन ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, तो मैं विक्टिम हो गया और अक्यूज, मैं उसके अगेंस्ट में जो चार्जेस लगाया था मैंने वो ड्रॉप कर सकता हूं, कंप्रोमाइज हो सकते हैं ये ऑफेंस. तो द ऑफेंस व्हिच कैन बी कंप्रोमाइज इज नोन एज अ कंपाउंडेबल ऑफेंस. सेक्शन 359 ऑफ द BNSS speaks about compounding of offenses. Compoundable offenses are less serious criminal offenses. देखिए सेक्शन 359 ऑफ BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, speaks about compounding of offenses. So there is a particular chart under section 359 of BNSS which specifies which offense is compoundable and which offense is non-compoundable one. So compounding of offense, if we want to know which offense is compoundable and which offense is non-compoundable, we have to go through with section 359 of BNSS. So generally compoundable offenses are less serious criminal offenses. The offenses which is less serious one कैन बी कंप्रोमाइज्ड. तो सेक्शन 359 जो BNSS का है उसमें ये बताया हुआ एक चार्ट में कि कौन सा ऑफेंस में कंप्रोमाइज पॉसिबल है, कौन से ऑफेंस में कंप्रोमाइज पॉसिबल नहीं है. नॉर्मली जो कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं जिसमें कंप्रोमाइज पॉसिबल है वो लेस सीरियस ऑफेंसेस होते हैं और लेस सीरियस ऑफेंसेस में ही कंप्रोमाइज पॉसिबल होता है. फॉर सम ऑफेंस court permission is not required before compounding. For example of these offenses include adultery, causing hurt, defamation, criminal trespass. So certain offenses which comes under the category of compoundable offenses are such in which there is no need to obtain a permission from the court. The parties can compromise their matter out of the court and can only intimate the magistrate that we have compromised the matter. Such offenses are less serious offenses. For example, adultery, causing hurt, defamation and criminal trespass. तो कुछ offenses ऐसे होते हैं, offense तो हुआ लेकिन दो पार्टी आपस में आउट ऑफ कोर्ट उस मैटर को कंप्रोमाइज कर सकते हैं, कोर्ट के परमिशन की जरूरत नहीं होती है, वो कंप्रोमाइज करेंगे और सिर्फ कोर्ट को आकर इंटीमेट करेंगे कि हम दोनों के बीच में कंप्रोमाइज हो गया और कोर्ट मैटर को रफा दफा कर देगा. लेस सीरियस ऑफेंस होते हैं जैसा कि अडल्ट्री हो गया, कॉजिंग हर्ट हो गया, डिफेमेशन हो गया, क्रिमिनल ट्रेसपास हो गया. देखिए कोर्ट परमिशन इज रिक्वायर्ड बिफोर कंपाउंडिंग. सर्टेन ऑफेंसेस आर such in which the court permission is required before compromising the matter. कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें अगर हमको कंप्रोमाइज करना है मेरे और आपके बीच में, सपोज आपने मेरे अगेंस्ट में ऑफेंस किया, आपने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि मुझे माफ कर दो और मैं माफ करने के लिए तैयार हूं, हम दोनों को कंप्रोमाइज करने का है मैटर, लेकिन ऑफेंस ऐसा है कि जिसमें कोर्ट की परमिशन की जरूरत पड़ेगी. तो हम क्या करेंगे, हम जाकर कोर्ट को बोलेंगे कि वी वांट टू कंप्रोमाइज द मैटर, कि हमको मैटर को कंप्रोमाइज करना है. अगर कोर्ट परमिशन देगा तभी मैटर कंप्रोमाइज होगा, अदरवाइज नॉट. एग्जाम्पल ऑफ सच ऑफेंसेस आर थेफ्ट. मेरे घर में चोरी होगी,
अब मैं चोर को माफ करना चाहता हूं, आउट ऑफ द कोर्ट में मैटर को सेटल नहीं कर सकता, मुझे कोर्ट में जाके कोर्ट के परमिशन के साथ करना पड़ेगा। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपने मेरे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, तो हम दोनों के बीच में कंप्रोमाइज तो है, चाहते तो कंप्रोमाइज, लेकिन कोर्ट के परमिशन के साथ कंप्रोमाइज होगा। वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, सिंपल हर्ट के लिए आउट ऑफ द कोर्ट पॉसिबल है, कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं है कंप्रोमाइज के लिए, लेकिन कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट के लिए हम दोनों को कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट की परमिशन के साथ कंप्रोमाइज हो सकता है। असॉल्ट ऑन अ वुमन, वुमन के अगेंस्ट में असॉल्ट किया, कंप्रोमाइज हो सकता है, लेकिन विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। Application for compounding the offences shall be made before the same court before which the trial is proceeding. Once offense has been compounded, it shall be the effect of acquittal. Suppose if you want to make an application for compounding the offense, we have to make an application before the same court in which the trial is going on. अगर हमको कंपाउंड कंप्रोमाइज करना है तो वही कोर्ट में हमको एप्लीकेशन करना पड़ेगा जिस कोर्ट में केस चल रहा है, और एक बार मैटर कंप्रोमाइज हो गया तो उस कंप्रोमाइज का इफेक्ट एक्विटल होगा, बाइज्जत बरी हो जाएगा अक्यूज। तो कंपाउंडेबल ऑफेंस कैसे है? जिसमें कंप्रोमाइज पॉसिबल है। कुछ ऑफेंसेस विदाउट कोर्ट के परमिशन के भी हो सकते हैं कंप्रोमाइज, कुछ ऑफेंसेस के लिए कोर्ट की परमिशन रिक्वायर्ड है। दूसरा कंसेप्ट है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। देखिए अब नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या है? There are some offenses which cannot be compounded, they can only be quashed. देखिए certain offenses are which are serious, which are having a serious nature, they cannot be compounded at any cost. Such offenses comes under the category of non-compoundable offense. कुछ offenses जो serious है उसमें कंप्रोमाइज पॉसिबल नहीं है, कोर्ट भी परमिट नहीं कर सकता उसको कंप्रोमाइज करने के लिए, वहां पर कंप्रोमाइज होगा ही नहीं किसी भी सूरत में। दे कैन ओनली बी क्वाश्ड। वो जो एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है वो कंप्रोमाइज नहीं हो सकती है, उसमें सिर्फ क्या हो सकता है? क्वॉशिंग ऑफ एफआईआर हो सकती है। हाई कोर्ट में जाकर हम क्या कर सकते हैं? एफआईआर को क्वॉश कर सकते हैं। बट सीरियस नेचर का ऐसे ऑफेंस है जो 359 ऑफ बीएनएसएस में नॉन कंपाउंडेबल के कैटेगरी में आते हैं, तो वो कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकते। दे कैन नॉट बी कंपाउंडेड एट एनी कॉस्ट। द रीजन फॉर दिस इज बिकॉज द नेचर ऑफ ऑफेंस इज सो ग्रेव एंड अक्यूज कैन नॉट बी अलाउड टू फ्री। व्हाई certain offenses comes under the category of non-compoundable one? Because those offenses are very serious in nature, and if we compromise such type of offense, then accused will be free in the society. ऐसे ऑफेंसेस जो सीरियस नेचर के हैं जिसमें कंप्रोमाइज पॉसिबल नहीं है, अगर इसमें भी कंप्रोमाइज होने लग गया तो अक्यूज तो इजीली कंप्रोमाइज करके सोसाइटी में फ्री घूमेगा। तो सीरियस नेचर के ऑफेंस है इसलिए उसको कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है। अंडर अ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस अ प्राइवेट पार्टी एज वेल एज द सोसाइटी बोथ आर अफेक्टेड। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो होते हैं सीरियस नेचर का जो ऑफेंस होता है उसमें सिर्फ विक्टिम ही सफर नहीं होता बल्कि सोसाइटी भी सफर होती है, एंड दैट्स व्हाई the offense is supposed to be against the society itself, and that's why that cannot be compromised. वो compromise नहीं होना चाहिए non compoundable offense. Then in non compoundable offense no compromise is allowed, even the court does not have the authority and power to compound the offense. There is no provision relating to the compounding in a non-compoundable offense. Even court cannot permit the parties to compound the offense. non-compoundable offense है तो कोर्ट भी परमिट नहीं कर सकता है पार्टीज को ऑफेंस को कंपाउंड करने के लिए। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, कंप्रोमाइज पॉसिबल नहीं रहेगा, कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता। Full trial is held which ends with the acquittal or conviction of the offender based on the evidence given. So if the offense is a non-compoundable one, then accused can only be convicted or acquitted after a full-fledged trial on the basis of a certain evidence given before the court of law. अगर नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है तो उसका रिजल्ट एक तो एक्विटल या कन्विक्शन में आएगा, वो भी फुल ट्रायल कंप्लीट होने के बाद, एविडेंस कोर्ट में आने के बाद ही मैटर डिसाइड होगा फाइनली। कंप्रोमाइज पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। तो कंपाउंडेबल ऑफेंस ऐसे है कि जिसमें कंप्रोमाइज पॉसिबल है, और नॉन कंपाउंडेबल ऐसे ऑफेंसेस को कहेंगे कि जिसमें कंप्रोमाइज किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो कंसेप्ट है कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस का मैंने आपको समझा पाया होगा। अगर समझ में आया है आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।